Good morning, students. We had already started chapter 4. The discussion first part we had seen in the lecture 1. Now we will continue the next topics in lecture 2. So in this current lecture, we have to discuss the motion in magnetic field, then the force between two conductors, galvanometer, ammeter, voltmeter, and so on. So these are the topics we have to discuss. These are very important topics. So be careful, listen carefully, attend carefully, and please make a note of the important points. So let us start motion in a magnetic field. See, motion in a magnetic field. So magnetic field is already given. In this magnetic field, any charge particle can move. So if a charge particle is moving in a magnetic field, what will be the effect on its motion? That we have to discuss, whether it will be attracted, deflected, repelled, like this. So these effects we have to discuss. So we will now consider in greater detail the motion of a charge moving in a magnetic field, motion of a charge particle moving in a magnetic field. We have learned in mechanics that a force on a particle does work if the force has a component along or opposite to the direction of motion of particle. 11th स्टैंडर्ड में हमने मैकेनिक्स में ये सीख लिया है कि वर्क डन कब होता है. वर्क डन सिर्फ तभी होता है जब किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है और उस फोर्स के डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होती है या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मोशन होता है तो वर्क डन होता है, या फिर दूसरे किसी एंगल पे भी होता है तो भी वर्क डन हम कर सकते हैं. वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय एंगल. इसका मतलब है एफ डी कॉस थीटा है, जिसमें थीटा एफ और डी के बीच का एंगल, राइट. तो ये हमें पता करना है. तो अपोजिट डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, देन वर्क डन इज जीरो. वो भी हम जानते हैं. तो यहाँ पर हम ये वही हम पता करने वाले हैं कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर कितना वर्क डन होगा और कितनी एनर्जी स्टोर होगी. So we have learned in mechanics that a force on a particle does work if a force has a component along or opposite to the direction of motion. Now in the case of motion of a charge in a magnetic field, the magnetic force is perpendicular to the velocity of particle. कुछ समझ में आ रहा है क्या है? मैग्नेटिक जो फोर्स होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल is entering the magnetic field. So no work is done and no change in the magnitude of velocity is produced. वर्क डन जीरो होगा. क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है. मैंने अभी आपको बताया कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, जिसमें कॉस थीटा मतलब थीटा क्या है? एंगल है. अगर थीटा की जगह हम 90 रखेंगे तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा. इसका मतलब है वर्क डन जीरो हो जाएगा. सो नो वर्क इज डन and no change in the magnitude of the velocity is produced. क्यों? Through the direction of the momentum may be changed. Though the direction of momentum may be changed, but the velocity, direction, magnitude will not be changed. Notice this is unlike the force due to an electric field. Q into E. Electric field का force कितना लगता है? Q into E, which can have the component parallel or anti-parallel to motion and thus can transfer energy in addition to the momentum. अब इसमें देख लीजिए Q into E है, मतलब वर्क डन कितना है, फोर्स कितना है? Q into E, इतना फोर्स लगता है. तो इसमें it can motion does the transfer energy in addition to the momentum के addition energy भी transfer हो सकती है. We shall consider the motion of a charge particle. अभी एक हम केस लेते हैं कि जिसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. अब उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हमें पता करना है. सो वी शैल कंसिडर द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट कंसिडर द केस ऑफ V परपेंडिकुलर टू V. अभी हम इसमें अलग अलग केसेस कंसिडर कर सकते हैं. उसमें से पहला केस कौन सा है कि जिसमें वेलोसिटी B के परपेंडिकुलर है, मतलब B इज
मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, v is the velocity direction. तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. The perpendicular force QVB acts as the centripetal force and produces a circular motion perpendicular to the magnetic field. देख लीजिए, फिर से एक बार बता देता हूँ कि if the charge particle entering a electric field, it will be acted upon by a force Q into E. ये जो Q into E है, इतना फोर्स उसके ऊपर लगता है, राइट, लाइक दिस. लेकिन अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो इसके ऊपर Q इंटू वी इंटू बी जितना फोर्स लगता है. एक बात आप नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स में वेलोसिटी पे डिपेंडिंग नहीं है फोर्स, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी डिपेंडेंट है. अगर वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स नहीं लगेगा, जबकि वेलोसिटी जीरो है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो लगेगा ही. Acts as a centripetal force and produces the circular motion perpendicular to the magnetic field. The particle will describe a circle if V and B are perpendicular. So अगर ये परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ आएगा, वो तो आप जानते हैं, क्योंकि सर्कल के अंदर आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स हमेशा मतलब वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है और फोर्स हमेशा टॉवर्ड्स द सेंटर होता है. तो ये दोनों एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं. सो व्हेन द फोर्स एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, इट विल ऑलवेज डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन to each other as shown in the figure. तो यहाँ पर फिगर में दिखा हुआ है, राइट, लाइक दिस, कि ये जो फील्ड है, ये क्रॉस क्रॉस जो दिखा रहा है, इट इज नथिंग बट द फील्ड लाइंस विच इज गोइंग इनसाइड द पेपर. इसके अंदर ये एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल क्यू है जो इस सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. इसका यहाँ पर सेंटर है जिसकी रेडियस आर है, राइट, लाइक दिस. अब इसका सेंट्रिपिटल फोर्स एफ लग रहा है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लग रही है, राइट, लाइक दिस. If velocity has a component along B, this component remains unchanged, as the motion along the magnetic field will not be affected by the magnetic field. This is very important. So if velocity has a component along B, this component remain unchanged, as the motion along the magnetic field not be affected by the magnetic field. The motion in plane perpendicular to B is as before a circular one, thereby producing the helical motion if r is the radius of. अभी देख लीजिए कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है तो ये इस तरह से मूव करता रहेगा. मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी सर्कुलर मोशन तो होगा ही, लेकिन उसके ऊपर एक उसके डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, एक्स डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा. इसका मतलब है वो सर्कुलर मोशन करते करते थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, राइट, लाइक. और अगर आगे बढ़ता है तो वो हेलिकल पाथ आएगा. ये हेलिकल पाथ है, ये एक ही सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, जबकि ये सर्कुलर पाथ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है. इसका मतलब ये हेलिकल मोशन है. क्यों? क्योंकि बी की वजह से उसको एक्स के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. आप देख लीजिए बी का डायरेक्शन और एक्स का डायरेक्शन सेम है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, राइट, लाइक दिस. सो द मोशन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू बी is as before a circular one, thereby producing the helical motion. If r is the radius, अभी मान लीजिए कि r is the radius है, इसकी radius कितनी है? r है, right, like this. r is the radius of this of the circular path of the particle. Then a force of mv square upon r. अब नेचुरली अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है? टॉवर्ड्स द सेंटर, mv स्क्वायर अपॉन r. ये 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं. x परपेंडिकुलर टू द पाथ टॉवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट इज कॉल्ड द सेंट्रिपिटल फोर्स. वो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया. तो ये f की जो वैल्यू कितनी है? mv स्क्वायर अपॉन r. If the velocity v is perpendicular to the magnetic field B, the magnetic force perpendicular to both V and B acts like a centripetal force. It has a magnitude QVB. अभी मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? Q into V into B. इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? Q into E. E is nothing but what? Electric field intensity, and B is the magnetic field intensity. Equating the two expressions for centripetal force. अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, देख लीजिए हमें इसकी रेडियस मिल जाएगी. तो हम ये रेडियस का इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं. So mv square upon r is equal to qvb, that is r is equal to mv upon qb. तो हमें ये r मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगी.
इसका मतलब है when the charge particle enters in electric as well as magnetic field, so because of the magnetic field it will have a helical circular path with a radius r is equal to m into v upon q into b. Now you can directly see from the equation that it is directly proportional to mass and inversely proportional to the charge. Inversely proportional to the charge. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी रेडियस कम होगी, जितना मास ज्यादा होगा रेडियस ज्यादा आएगा, राइट, लाइक दिस. सो ये भी आप डिपेंडेंसी भी ध्यान में ले लीजिए. So this we are just describing the motion of a charge particle in a magnetic field, right, like this. आगे बढ़ते हैं. For the radius of the circle described by the charge particle, the larger the momentum, right, like this. So larger is the momentum, the larger is the radius and bigger is the circle described. तो मैंने आपको बताया कि चार्ज पार्टिकल में जितना ज्यादा रेडियस है उतना मोमेंटम ज्यादा आएगा. इफ ओमेगा, अभी हम उसको उसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, उसका पीरियोडिक टाइम फाइंड कर सकते हैं. सो इफ ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी देन v इज इक्वल टू r ओमेगा, 11 स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर याद है तो v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f. ये जो v लिखा हुआ है वो एक्चुअली f है, राइट, लाइक दिस. सो f मींस फ्रीक्वेंसी, 2 पाई f दैट इज इक्वल टू qb अपॉन m. वो आगे वाली वैल्यू रख देंगे तो, राइट, लाइक दिस. तो qb अपॉन m आएगा which is independent of velocity or energy. तो ये velocity और energy से independent. Here v is the frequency, nu is the frequency of rotation. The independence of nu from energy has an important application. अब ये जो है कि independence of f from the energy has an important application in a design of cyclotron. आगे आप cyclotron पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये important application है, राइट. साइक्लोट्रॉन इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है. सो अभी हम उसका टाइम टेकन फाइंड करना चाहते हैं. सो टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन इज t इज इक्वल टू 2 ओमेगा अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा. t इज इक्वल टू, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा मींस t इज इक्वल टू 1 बाय f भी लिख सकते हैं. इफ देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय v पैरेलल, it will make the particle move along the field and path of the particle would be a helical one. The distance moved along the magnetic field in one rotation is called the pitch. इसका मतलब है, फिर से ये पहले वाली स्लाइड देख लीजिए कि ये एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ये थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर से दूसरा सर्कल कंप्लीट करता है, फिर आगे बढ़ता है. तो हर सर्कल के बाद वो कितना आगे बढ़ता है उसको इसका पिच कहते हैं. दिस इज कॉल्ड पिच. It is the distance between the two circular paths. It is the distance between the two circular paths. It will make the particle move along the field and the path of the particle will be helical one. The distance moved along the magnetic field in one rotation is called the pitch. अभी pitch कितना होगा? Pitch मतलब linear distance. तो linear distance की formula क्या होती है? Velocity into time. तो v parallel multiplied by time, right? v parallel multiplied by time. So v parallel multiply v parallel as टाइम की जगह t की आगे की ये फॉर्मूला रख देते हैं तो 2 पाई m अपॉन qb. तो ये फॉर्मूला मिल जाएगी पिच की, राइट, लाइक दिस. पिच भी किसके ऊपर डिपेंड है देख लीजिए, मास के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन जो था दैट इज नथिंग बट द डिस्कशन ऑफ, फिर से बता देते हैं, चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट, लाइक दिस. सो ये इसका डिस्कशन आपने को मिलेगा. यहाँ तक आपको डिस्कस करना है. ये पूरी थियरी भी मैंने वैसे ही लिख दी है जैसा आपको एग्जाम में लिखना है. तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है और टू द पॉइंट है. तो आपको भी अगर प्रिपरेशन करना है तो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस, राइट, लाइक दिस. आगे बढ़ते हैं. मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. अभी हम क्या करेंगे कि उसी पार्टिकल को ऐसे फील्ड में एंटर करेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइंड है. तो अब टोटल फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा उसको वेलोसिटी सिलेक्टर भी कहते हैं. ये क्यों कहते हैं आगे फॉर्मूला डिराइव आएगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा. तो ये सबसे पहले किसने, मतलब लॉरेंट्ज नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे, डेरिवेशन भी किया था, राइट, लाइक दिस. सो यू नो दैट a charge q moving with velocity v
in presence of both electric and magnetic field experiences a force given by equation. अब देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, वैल्यू ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब Q इंटू ई, जितना ये जो Q इंटू ई है इतना फोर्स लगता है। और वही चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, Q इंटू वी इंटू बी, जितना फोर्स QVB इतना फोर्स लगता है। उसको FB कहते हैं और इसको FE कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर हम दोनों फील्ड को कंबाइन करके उसमें अगर चार्ज पार्टिकल का मोशन देखेंगे तो टोटल रिजल्टिंग फोर्स F इज इक्वल टू FE प्लस FB मिलेगा। उसमें से Q कॉमन निकाल लेते हैं तो E प्लस V क्रॉस B आएगा। So we shall consider the simple case in which the electric and magnetic fields are perpendicular to each other and also perpendicular to the velocity of the particle as shown in figure. तो यहाँ पर फिगर में दिखा हुआ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस है। कौन से डायरेक्शन में कौन से फील्ड है देख लीजिए। ये B का डायरेक्शन, ये E का डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। B and E both are perpendicular to each other as well as velocity is again the perpendicular to both of them. तो x y z तीन डायरेक्शन हो गए, राइट लाइक। E के डायरेक्शन में F ही लगेगा, B के डायरेक्शन में FB नहीं लगेगा, लेकिन FB FE के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा FB। तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन आ गए, राइट लाइक। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि FB और V हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, राइट लाइक दिस। तो ये इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगता है। सो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज शोन इन फिगर। तो यहाँ फिगर में आपको ये दिखा हुआ है। अभी E इज इक्वल टू EJ आएगा, समझ में आया। EJ का मतलब क्या है, y डायरेक्शन में। B इज इक्वल टू BK आएगा, मतलब z डायरेक्शन में। V इज इक्वल टू VI आएगा, इसका मतलब है x डायरेक्शन में है। अब ये सब यहाँ पर रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, FE FB इज इक्वल टू ये सब मिल गया, दैट इज माइनस QB इंटू G। सो देयरफॉर F इज इक्वल टू QE माइनस VBJ। इसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, राइट लाइक दिस। सो E माइनस VB इंटू J के डायरेक्शन में जाएगा, राइट। Thus, electric and magnetic forces are in opposite directions as shown in the figure. Electric and magnetic forces are in opposite direction as shown in the figure. Suppose we adjust the value of E and B such that the magnitude of two electric forces are equal. अब अगर दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दें तो QE is equal to QVB हो जाएगा, QQ कैंसल, इसका मतलब है V is equal to E upon B। इस फॉर्मूला को वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल हमने दोनों कंबाइंड फील्ड के अंदर एंटर करवाया था उसकी वेलोसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और वो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ E एंड B वैल्यू, राइट लाइक। ये जो वैल्यू रेशियो है उसको हम सेट करके वेलोसिटी का जितना रेशियो रखना है उतना कर सकते हैं, राइट लाइक दिस। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना रखना है। सपोज हमने E इज इक्वल टू B रख दिया तो वेलोसिटी V इज इक्वल टू 1 आएगा इन दिस वे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर, राइट लाइक दिस। द क्रॉस्ड E एंड B फील्ड्स देयरफॉर सर्व एज वेलोसिटी सिलेक्टर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थियरी है, ये आपको 2 या 3 मार्क में पूछ सकते हैं। Discuss the motion in combined electric and magnetic field. Discuss the motion of a charged particle in combined electric and magnetic field. तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कुछ और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं जो कि सोलेनॉइड और टॉरॉइड है। ये प्रैक्टिकली बहुत सारी सर्किट में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है, इवन अपने जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स होते हैं उसमें यूज होता है, और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है। तो ये क्या एग्जैक्टली है, सोलेनॉइड क्या है, टॉरॉइड क्या है, ये हम समझ लेते हैं, राइट लाइक दिस। सो हम शुरुआत करते हैं कि जैसे हमने एक स्ट्रेट तार ले लिया। मैंने आपको बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली कैसे बनता है। इसमें थियरी में भी शायद डिस्कस नहीं, मैं तो आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ कि एक सिंपल हमने तार ले लिया तो वो इट इज ए लॉन्ग वायर, वो वायर हो गया। अब उस तार का पूरा उसको बेंड करके सर्कल बना दीजिए तो वो एक सर्कुलर वायर हो गया, मतलब सर्कुलर कंडक्टर हो गया। उसको और बहुत सारे टर्न्स दे दीजिए, काफी सारे टर्न्स, राइट लाइक, तो वो बन जाएगा एक सोलेनॉइड, राइट लाइक। तो वो सोलेनॉइड बन जाएगा। और सोलेनॉइड को भी दोनों तरफ से एंड को एक दूसरे को जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा टॉरॉइड। इसका मतलब है एक ही तार से आप
स्ट्रेट कंडक्टर से आप सोलेनॉइड भी बना सकते हैं और टोरॉइड भी बना सकते हैं। तो ये क्या चीज है फिर से आप समझ लेते हैं, राइट। ये जो फिगर के अंदर सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, सोलेनॉइड को एक साइड पे अगर बीच में से कट करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन आपको ऐसे दिखाई देगा, राइट, लाइक दिस। The solenoid and the toroid are two pieces of equipment which generate the magnetic field. अब ये दोनों के दोनों जो हैं solenoid और toroid, ये हमेशा magnetic field को generate करने के लिए बनाए गए हैं। The television uses the solenoid to generate magnetic fields needed. ये बहुत पुराने जो पिक्चर ट्यूब आता था, जो आजकल तो खैर होता नहीं, आजकल सब LCD LED वगैरह आ गए हैं, लेकिन उससे पहले जो CRT पिक्चर ट्यूब्स आती थी, उसके अंदर टेलीविजन की जो ट्यूब्स थी, उसके एंड पे कॉर्नर पे हमेशा सोलेनोइड लगता था। वो सोलेनोइड क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता था, राइट, लाइक दिस। द सिंक्रोटोन uses the combination of both to generate the high magnetic fields required. In both solenoid and toroid, we come across the situation of high symmetry where Ampere's law can be conveniently applied. तो सबसे पहले तो ये टोरॉइड और सोलेनॉइड क्या है ये हमने बता दिया, कहाँ यूज होता है ये आपको पता चल जाए। अब उसकी पूरी थियरी हम स्टडी करते हैं, राइट, लाइक कि ये एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से काम करता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं सोलेनॉइड। We shall discuss a long solenoid. By long solenoid we mean, अब long solenoid किसे कहते हैं? See, long का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे डायमेंशन के कंपेयर में अगर एक डायमेंशन बहुत ज्यादा है तो उसको long कहते हैं। जैसे हमारे पास बेसिकली सोलेनॉइड में दो टाइप के डायमेंशन बनेंगे, एक तो उसकी लेंथ और दूसरा उसका डायमीटर। अब अगर डायमीटर के कंपेयर में लेंथ बहुत ज्यादा है, या तो फिर लेंथ के कंपेयर में डायमीटर बहुत ही कम है, तो उसको लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं। सो बाय लॉन्ग सोलेनॉइड वी मीन दैट द सोलेनॉइड्स लेंथ इज लार्ज कंपेयर्ड टू द रेडियस। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर वाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो उसको पूरा हेलिक्स की तरह ऐसे 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 घुमा के पूरा वाउंड कर लेते हैं, राइट, हेलिक्स, वेयर द नेबरिंग टर्न्स आर क्लोजली स्पेस्ड, लेकिन फिर एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होना चाहिए। सो ईच टर्न कैन बी रिगार्डेड एज अ सर्कुलर लूप and the net magnetic field is the vector sum of the fields due to all the turns. Now enameled wires are used. Enamel मतलब क्या है कि उसको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर भिगो के रखते हैं, एनेमल्ड रखते हैं, ताकि एक दूसरे के पास में रह के भी वो एक दूसरे से शॉर्ट ना हो जाए, राइट, शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकती, इसीलिए उसको एनेमल्ड कहते हैं। फॉर वायरिंग सो दैट द टर्न्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम, या तो फिर उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा देते हैं, उसको भी एनेमल्ड कहते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन दिखा हुआ है, यहाँ से ये तार निकलती है, यहाँ जाती है, फिर यहाँ से निकलती है, यहाँ जाती है, इस तरह से पूरा वाउंड किया हुआ है। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड सारा ऐसे जा रहा है, राइट, लाइन एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ से बाहर निकल रहा है। और जहाँ पर ये वायर्स को कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ पर जहाँ पर उसको लूप में फंसाया है, वहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा लूप बनता है, राइट, लाइक दिस। सो दिस इज नथिंग बट द लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड। The net magnetic field is the vector sum of the fields due to all. Enamel wires are used for winding so that the turns are insulated from each other, right, like this. अभी उसके अंदर का फिर से क्रॉस सेक्शन अगर हम देखेंगे तो वो ऐसे दिखाई देगा, राइट, लाइक दिस, ऐसे दिखाई देगा। उसके अंदर आप यहाँ देखिए ऊपर जो दिख रहे हैं वो सब डॉट्स हैं, ये सब डॉट्स हैं ब्लू कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, और इसके ठीक नीचे क्रॉस है। तो क्रॉस का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से वायर निकल रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है, फिर से दूसरा वायर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ से अंदर जा रहा है। ये इस तरह से सारे वायर्स को लपेटा गया है इसके अंदर, या फिर उसके अंदर वाउंड करके रखा हुआ है, राइट, लाइक दिस। अभी ये सब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसका डायरेक्शन भी यहाँ पर राइट हैंड रूल से दिखाया हुआ है कि इसका डायरेक्शन ऐसा, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का, राइट, लाइक दिस। ओके, नाउ इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी कुछ इफेक्ट बाहर भी आएगी, लेकिन फिर यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि उसकी जो इफेक्ट है बाहर वो इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी अंदर होती है, राइट, लाइक दिस। तो बाहर की इफेक्ट एक दूसरे को कैंसल करती है। सो कंसिडर ए रेक्टेंगुलर एम्पियर एंड लूप एबीसीडी। ये एक्चुअली एम्पियर लॉ के बेस्ड है, इसलिए इसको एम्पियर एंड लूप कहते हैं, एबीसीडी। Along CD, the field is zero, as argued above. Along CD, the field is zero, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है,
ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये दो जो आर्म्स है वो पैरेलल है, और ये जो दो आर्म्स है वो परपेंडिकुलर है. Along CD the field is 0 as argued above. Along transverse section of BC and AD the field component is 0. BC and AD the field is component is 0. Thus these two sections make no contribution. Let the field along the AB be B. Right, like this. तो ये जो AB है वहां पर फील्ड कितना है, कैपिटल B. Thus the relevant length of Amperian loop is, the relevant length of Amperian loop is L is equal to H. तो ये लेंथ जो है वो H जितनी है, right, like this, is equal to H. Let N be the number of turns per unit length. Then the total number of turns is N into H. Naturally, क्योंकि लेंथ कितनी है, N, H है, और स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, n into h. द एनक्लोज्ड करंट इज I इज इक्वल टू I into n into h. क्योंकि पर टर्न I जितना करंट है तो टोटल करंट कितना हो गया, I into E into n into h, where I is the current in the solenoid. फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, अब सर्किटल लॉ आगे हमने पढ़ लिया था, उसमें क्या था, B into L is equal to mu 0 I E. BL is equal to mu 0 into I into E, and BH is equal to mu 0 I into N into H. मतलब ये mu 0 की जगह mu 0 रख देंगे, right? L means H आ जाएगा, L is equal to, right? L is equal to H यहाँ पर दिया हुआ है, और IE की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, तो इतना आ गया. इसका मतलब दोनों तरफ से H कैंसिल हो गया, तो B is equal to mu 0 N into I. ये फॉर्मूला पहले डिराइव हो चुकी है, वैसी ही फॉर्मूला सोलेनोइड के लिए यहाँ पर आ गई, राइट, लाइक दिस. सो सोलेनोइड की ये फॉर्मूला है. इसका मतलब है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कितना मिलेगा, mu 0 मल्टीप्लाइड बाय n into I, राइट, लाइक दिस. तो इतना इसमें फील्ड मिलता है. तो ये जो फिगर है आप अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं इसको इधर उधर घुमा के आपको ये बता रहा हूँ कि ये किस तरह से फिगर चलती है. अब इसी के अंदर टॉरॉइड है. टॉरॉइड मतलब क्या था, वो जो सोलेनॉइड था उसके दोनों एंड को एक दूसरे से जोड़ दिया, पूरा रिंग बना दिया. तो वो जो सोलेनॉइड था उसके रिंग बना दी, राइट, लाइक जैसे कोई पाइप होता है, पाइप के दोनों एंड को एक दूसरे से जोड़ देंगे तो रिंग बन जाएगा. इसका मतलब ये टॉरॉइड बन जाएगा. तो टॉरॉइड बेसिकली क्या है, सोलेनॉइड को ही पूरा राउंड शेप में ज्वाइन कर देगा. द टॉरॉइड इज ए होलो सर्कुलर रिंग on which a large number of turns of wires are closely wound. It can be viewed as a solenoid which has been bent into the circular shape to close on itself. It is shown in figure carrying a current. तो ये यहाँ पर फिगर में दिखा है, और उसमें से I करंट जा रहा है, मतलब नेचुरली एक जगह से एंटर हो जाएगा करंट, दूसरी जगह से बाहर निकल जाएगा. ये करंट यहाँ से एंटर हुआ, ये ऐसे 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 करके गया और यहाँ से बाहर निकल गया. इसका भी ये क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं, राइट, जिसमें ये इसका सेंटर है, राइट, लाइक दिस. अभी सर्कल तो यहीं से शुरू होता है, राइट, और यहाँ खत्म हो जाता है. तो ये इंटरनल रेडियस है, एज है, और ये एक्सटर्नल एज है, बीच में कुछ नहीं है. इसका मतलब है हमें कुछ एरिया ऐसे मिलेंगे जो सोलेनोइड के अंदर है, और कुछ एरिया ऐसा मिलेंगे जो सोलेनोइड के बाहर है, राइट, लाइक दिस, सोलेनोइड के आउटसाइड है. सो फिगर शोज ए सेक्शनल व्यू ऑफ द टॉरॉइड. तो सेक्शनल व्यू टॉरॉइड का यहाँ पर दिखाया हुआ है. अब इसको डिस्कस करते हैं कैसे. सेक्शनल व्यू. लेट द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप 1 be B1 in the magnitude, then the Ampere circuital law L is equal to 2 pi R1. L is equal to 2 pi R1 हो जाएगा. लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल 2 pi R1. So B1 is into 2 pi R1 is equal to mu 0 into 0. So B1 0 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि loop the enclosed is no current, so IE is equal to 0. Thus the magnetic field at any point P in the open space inside the toroid, तो अंदर का जो है वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहां कोई करंट नहीं है. वी फाइंड L is equal to 2 pi R. अभी हम सेंटर की बात करते हैं, यहाँ पर इस एरिया की. वहां पर करंट है, तो इसका मतलब है अभी B into 2 pi R is equal to mu 0 N into I, क्योंकि वहाँ N नंबर ऑफ टर्न्स है, तो N into I आएगा. इसका मतलब है B is equal to mu 0 into Ni upon 2 pi R. 2 पाई को हम 4 पाई भी कर सकते हैं, क्योंकि mu 0 upon 4 पाई की यूजुअली कांस्टेंट माना जाता है, तो उसको हम 4 पाई भी कर सकते हैं. या तो कैपिटल N की जगह 2 पाई RN भी रख सकते हैं, दैट इज एवरेज पेरीमीटर ऑफ द टॉरॉइड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स.
पर यूनिट लेंथ तो b इज इक्वल टू म्यू 0 n इंटू आई, ये फॉर्मूला भी बन सकते हैं। तो ये जो पूरा डिस्कशन था वो सोलेनॉइड और टॉरॉइड के लिए। एग्जाम में सेम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिस्कस द वर्किंग ऑफ सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड एंड डिराइव द रिक्वायर्ड फार्मूला। तो वो फार्मूला आप यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट्स। फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट्स, द एम्पियर। अभी दो पैरेलल कंडक्टर है, अब दोनों पैरेलल कंडक्टर के अंदर से करंट पास हो रहा है और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, डिस्टेंस d है। तो एक दूसरे के ऊपर वो कितना फोर्स लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट्स या तो टू पैरेलल कंडक्टर्स, वो हमें डिस्कस करना है। सो फ्रॉम द लॉरेंट्ज फार्मूला, फोर्स फार्मूला, इट इज लॉजिकल टू एक्सपेक्ट दैट two current carrying conductors placed near each other will definitely exert a magnetic force on each other. अगर दो कंडक्टर को एक दूसरे से थोड़े सेपरेशन पर रख देंगे और दोनों में से जब करंट पास होता होगा तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, राइट, लाइक दिस फोर्स लगाएंगे, वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्यों मैग्नेटिक फोर्स? क्योंकि कोई भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा कंडक्टर रख देंगे तो उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा, राइट, लाइट विल बी एक्टेड अपॉन बाय सम फोर्स। तो वो कितना फोर्स लगता है वो हम अभी देखते हैं इसमें। Figure shows the two long parallel conductors A and B separated by distance D carrying a parallel currents IA and IB। देख लीजिए इसके अंदर IA करंट जाता है, यहाँ IB करंट जाता है, राइट, लाइक दिस। फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा टॉवर्ड्स द अनदर कंडक्टर और B का डायरेक्शन ये है parallel perpendicular, right, respectively. The conductor A produces the same magnetic field BA at all points along the conductor B. The right hand rule tells us that the direction of the field is downward. वो direction of the field is downward, वो right hand rule से पता चल जाएगा आपको, right line, when the conductors are placed horizontally। its magnitude is given by equation। अभी इसके अंदर आगे अभी फॉर्मूला हमने डिराइव की थी, कितना मैग्नीट्यूड आएगा, BA is equal to म्यू 0 IA अपॉन 2 पाई D। ये अभी 1 मिनट पहले ही हमने ये फॉर्मूला लिखी थी, म्यू 0 NI अपॉन 2 पाई R की जगह हमने D रखा हुआ है, राइट लाइन। N तो 1 है, टर्न्स नहीं है, इसलिए इतना आएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये इतनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी आएगी। अभी फोर्स कितना लगेगा, फोर्स हमें पता करना है। द कंडक्टर B कैरिंग ए करंट IB will experiences the sideway force due to the field BA। The direction of this force is towards the conductor A। Verify this। We label this force as FB। The force on the segment L of B due to A। The magnitude of this force given by। अब इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा तो आगे हमने पता कर लिया है कि कोई भी कंडक्टर उसके अंदर अगर करंट I फ्लो हो रहा है, उसकी लेंथ L है और उसको B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, BIL, बिल, मतलब B इंटू आई इंटू एल। तो यहाँ पर IB इंटू एल इंटू बी आएगा। मैग्नेटिक फील्ड पहले कंडक्टर का आएगा और करंट दूसरे कंडक्टर का आएगा। तो अभी ये BA की वैल्यू वहां से रख देंगे तो म्यू 0 IA IB अपॉन 2 पाई D इंटू एल। अब ऐसा ही फोर्स अगर ये केस हमने B से शुरू किया होता, हमने एक्चुअली A कंडक्टर से शुरू किया पूरी स्टोरी, अगर हमने ये सारी स्टोरी B से शुरू की होती तो भी फॉर्मूला तो यही की यही आती, राइट। इसका मतलब है सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट आता। इसका मतलब है सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर FAB। ये FBA है, हम FAB भी फाइंड कर सकते हैं। तो नेचुरली दोनों एक दूसरे को इक्वल और अपोजिट आएगा, राइट, लाइक दिस। सो FBA इज इक्वल टू माइनस FB। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने यहाँ पर पूरे बॉक्स में रख दिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड। पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। पैरेलल करंट्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और एंटी पैरेलल करंट्स हमेशा रिपेल करते हैं। मैं यहाँ पर क्यों थोड़ा वेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूं कि आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करें और ये याद करें कि ऐसा ही एक रूल हमने इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल फर्स्ट लेसन में सीखा था। कौन सा? टू लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, टू अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसमें अनलाइक हमेशा अट्रैक्ट करता है
और लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करता है, इसमें पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करते हैं और एंटी पैरेलल रिपेल करते हैं। तो ये हमेशा एक दूसरे के साथ आप जोड़ के याद कर लीजिए, राइट। अब इस पर से हमें एम्पियर की डेफिनेशन मिल सकती है, एम्पियर करंट की डेफिनेशन। सपोज आई ए इज इक्वल टू आई बी अगर हम ले लेंगे तो ये आई ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट। The ampere is the value of the steady current which is when maintained in the each of the two very long straight and parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce on each of these conductors force equal to 2 into 10 raised to minus 7 newtons per meter of length. ये L को F के नीचे रख देंगे तो फोर्स पर लेंथ हो जाए, मतलब L को 1 मीटर ले लेंगे, D को भी 1 मीटर ले लेंगे, म्यू 0/2 पाई की वैल्यू रख देंगे तो वो 2 into 10 raised to minus 7 आता है और ये I आएगा, राइट। लाइक इसका मतलब है I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 into 10 raised to minus 7। तो इसके रिवर्स में भी आप डेफिनेशन भी एम्पियर की बना सकते हैं, जो आपने 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन में सीखा था, राइट। लाइक दिस कि एम्पियर की डेफिनेशन क्या है कि दो पैरेलल स्टेट कंडक्टर में से इतना करंट पास करना है सेम, सो दैट दोनों के बीच का फोर्स, जो फोर्स की वैल्यू है वो 2 into 10 raised to minus 7 न्यूटन लगे, और लेंथ कितनी रखनी है 1 मीटर, डिस्टेंस कितना रखना है 1 मीटर। So that is what the definition of ampere। अब ये जो थियरी एक बार हमें मिल गई, उसके ऊपर से अभी बहुत सारे एप्लीकेशन बनने लगेंगे। तो उसका जो बेस्ट एप्लीकेशन वो क्या है, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक बार पता कर लिया है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को, मतलब वायर को रख देंगे और उसमें से करंट पास करेंगे तो वो उसके ऊपर फोर्स लग जाता है, अगर फोर्स लगेगा तो वो मूव करेगा, इसका मतलब राइट लाइक दिस। अभी हम वायर को हम बेंड कर देते हैं और उसका एक लूप बना देते हैं, देख लीजिए ये रेक्टेंगुलर लूप बन गया, और अगर वो उस लूप के लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है तो उस लूप के ऊपर भी फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, घूमने लगेगा, राइट लाइक दिस। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से रोटेशन शुरू हो जाएगा, राइट लाइक दिस। तो फोर्स को ही हम टॉर्क बना सकते हैं, राइट लाइक दिस। तो ये कैसे करेंगे, तो देख लीजिए फिगर में दिखा है एन एंड एस दो बहुत बड़े मैग्नेट्स है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, राइट लाइक दिस। तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, राइट लाइक दिस। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक हमने रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी है। पहले ऐसा मान लेते हैं कि सिर्फ उसके अंदर एक ही टर्न है, वैसे बहुत सारे टर्न्स हम बना सकते हैं, राइट लाइक दिस। तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी है। अब उसकी लेंथ और ब्रेथ हम डिसाइड कर सकते हैं, उसके अंदर से हम करंट आई पास करेंगे, राइट लाइक दिस। जितना भी करंट आई हमने जैसे ही पास किया है, सपोज उसकी लेंथ कितनी है ए है और विड्थ कितनी है बी, राइट लाइक। तो ए क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, ए हो गया, कैपिटल ए इज इक्वल टू बी इंटू ए। आई जितना करंट पास करेंगे, अब इसका एक कंडक्टर में से करंट ऐसे जाएगा तो सामने वाले आर्म में से करंट ऐसे आएगा, तो ये दोनों आर्म में करंट तो एक्चुअली एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अपोजिट होने की वजह से, सामने सामने होने की वजह से करंट का डायरेक्शन अपोजिट बन रहा है, और अगर अपोजिट बन रहा है तो एक के ऊपर फोर्स लगेगा तो दूसरे के ऊपर रिपेल लगेगा, मतलब फोर्स ही लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अल्टीमेटली क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल प्रोड्यूस द टॉर्क एंड एज ए रिजल्ट दिस कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग, वो उसके ऊपर रोटेट अंदर रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं। वी नाउ शो दैट द रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग ए स्टेडी करंट आई एंड प्लेस्ड in a uniform magnetic field experiences the torque. It does not experiences a net force. Net force zero हो जाएगा क्योंकि positive negative zero, but torque will be produced. This behavior is analogous to that of the electric dipole in the uniform electric field. आगे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी कर लिया। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है और अल्टीमेटली वो घूमने लगता है। तो यहाँ पर भी ये एक टाइप का मैग्नेटिक फोर्स से टॉर्क लगेगा और वो घूमने लगेगा। We first consider the simple case when the rectangular loop is placed such that the uniform magnetic field B is in the plane of the loop. This is illustrated in figure. तो ये फिगर के अंदर दिखाया हुआ है, right like this. फिगर में आप इसको देख सकते हैं। The field exert no force on the two arms AD and BC of the loop. It is perpendicular to the arm AB and
of the loop and exert a force F1 on which the directed into the plane of the loop. Its magnitude is. अभी देख लीजिए चार आर्म्स है इसके. कौन से चार आर्म? ये एक आर्म है, ये दूसरा मतलब ए बी बी सी सी डी एंड डी है, राइट लाइन. तो ये जो सामने सामने का आर्म है इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर आएंगे, जबकि ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल के ऊपर फोर्स लगेगा, इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा. अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये सिर्फ टॉर्क की वजह से घूमने लगा. वो कितना लगता है? तो कोई भी एक कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितना लगता है? अभी हमने देखा बी आई एल, राइट लाइक दिस. सो बी इंटू मतलब बी आई एल, एल इज द लेंथ, लेंथ की जगह हमने बी ले लिया. सो बी इंटू आई इंटू लेंथ. सिमिलरली दूसरे के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? तो वो भी बी आई एल जितना. तो दोनों तरफ लेंथ सेम है लेकिन दोनों फोर्स को डायरेक्शन अपोजिट होंगे और उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है. अल्टीमेटली वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. Thus the net force on the loop is zero. There is a torque on the loop due to the pair of forces F1 and F2. तो ये दोनों forces उसके ऊपर torque produce करेंगे. Ultimately वो rotate करने लगेगा, right like this. So rotation will start. Rotation will start, right like this. तो rotation कितना होता है देख लीजिए. So torque, this torque is, so torque tau is equal to F1 A upon 2 plus F2 A upon 2. अल्टीमेटली आई इंटू बी इंटू दोनों तरफ से F1 और F2 की वैल्यू रख देंगे. उसके अंदर से हम क्या कॉमन निकालेंगे? आई ए बी. तो ये a बाई टू क्या बन जाएगा? a बन जाएगा. अभी a इंटू बी की जगह कैपिटल A रख देंगे, इसका मतलब है b इंटू आई इंटू ए हो जाएगा. a इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. We next consider the case when the plane of the loop is not along the magnetic field but makes an angle with it. We take the angle between the field and the normal to it. We define the magnetic moment of the loop as. So m is equal to I into a आ जाएगा. इसकी वैल्यू हम I into a भी रख सकते हैं. तो ये I into a की जगह हम मैग्नेटिक मोमेंट भी रख सकते हैं. तो अल्टीमेटली टॉर्क टॉ इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट m क्रॉस b हो जाएगा. m b साइन थीटा. ये हमने बहुत पहले भी शायद डिराइव कर लिया, राइट. तो ये सारी फार्मूला वैसे ही फिर से आती चली. दिस इज एनालॉगस टू the electrostatic case, electric dipole, and the dipole moment P is in the electric field. ऐसा ही इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने देखा था, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू P into E. So that kind of analogies you can see in magnetic field and electric field. अभी सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब जो हमने जो पहले लूप लिया था इससे पहले की जो फिगर थी, ये फिगर, राइट, उसके अंदर हमने रेक्टेंगुलर लूप लिया. रेक्टेंगल लूप की जगह हम सर्कुलर लूप भी ले सकते हैं. तो अगर सर्कुलर लूप लेना है तो उसके ऊपर फॉर्मूला कितने फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? B इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2. राइट. R इज द रेडियस एंड X इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, राइट लाइक दिस. इसमें भी हम बहुत सारी अलग अलग ऑप्शन ले सकते हैं कि x की वैल्यू अगर r से बहुत ज़्यादा है तो r स्क्वायर नीचे से कैंसिल हो जाएगा. तो अल्टीमेटली b स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 0 r स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर होगा. नोट दैट द एरिया ऑफ द लूप a की जगह हम फिर से क्या रख देंगे? पाई r स्क्वायर, राइट. तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन पाई यहाँ रख देते हैं. तो अल्टीमेटली म्यू 0 आई ए अपॉन 2 पाई x क्यूब हो जाएगा एज अर्लियर. फिर आई ए की जगह फिर से हम उसमें m रख सकते हैं. तो ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब हो जाएगा. तो ऐसा अलग अलग फॉर्मूला इसमें डिराइव कर सकते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. अब ये केस हमने क्यों कंसिडर कर लिया है देख लीजिए फिर से कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर है तो अभी कोई भी एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो वो सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका भी कोई टाइमिंग होगा, फ्रीक्वेंसी होगी. इलेक्ट्रॉन खुद एक चार्ज है, राइट लाइक. उसका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है. तो अल्टीमेटली इट विल प्रोड्यूस स्मॉल करंट. और अगर वो स्मॉल करंट है तो इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय फोर्स. तो वो कितना फोर्स होगा वो हमें पता करना है. उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है वो पता करना है.
तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। यहाँ एक फिगर के अंदर जेडी मतलब एक न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, Z उसका एटॉमिक नंबर है, E इज द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर इतने हो जाएंगे, R इसकी रेडियस है और R रेडियस पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E performs uniform circular motion around a stationary heavy nucleus of charge plus Z. This constitute a current. अब नेचुरली उसमें एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम dq by dt। सो चार्ज की वैल्यू E रख देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और टाइम मतलब पीरियोडिक टाइम हो जाएगा। एक सर्कुलर मोशन का पीरियोडिक टाइम कितना होता है, t, राइट राइट, एंड t इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, लेट r विद ऑर्बिटल रेडियस। अब देन पीरियोडिक टाइम की फॉर्मूला क्या है, 2πr अपॉन v, राइट। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू, T की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो EV अपॉन 2πr हो जाएगा। तो ये इसका डिस्कशन हो गया, इतना करंट प्रोड्यूस होगा, राइट, लाइक दिस। अब जब इतना करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट यूजुअली डिनोटेड बाय म्यू एल एसोसिएटेड विद द सर्कुलेटिंग करंट। मैग्नीट्यूड म्यू आई इज इक्वल टू कितना होगा, I इंटू आर, पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब I इंटू एरिया, राइट। तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब I की वैल्यू वहां से रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, EVR अपॉन 2। तो म्यू एल अपॉन एल ले लेंगे तो E अपॉन 2m हो जाएगा, राइट, लाइक दिस। ये म्यू एल की E अपॉन 2m MVR रख देंगे, मतलब ऊपर m से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे m से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप समझ रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है उसमें न्यूमरेटर में ME से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी ME से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ME इंटू V इंटू आर। अब ये MVR मतलब क्या है, 11th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी कर लिया रोटेशनल मोशन में, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम L हो जाएगा, राइट लाइन। अभी mv अपॉन L दैट इज इक्वल टू E अपॉन 2me हो जाएगा। इट इज कॉल्ड द गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इट इज अ कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.8 इंटू 10 कूलम पर केजी फॉर एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी वैल्यू है। अभी अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल एटॉमिक एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो ये एंगुलर मोमेंटम और ये एंगुलर मोमेंटम को हम इक्वेट कर देंगे, राइट, या L की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, EH अपॉन 4 पाई। अब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दे, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है। आप देख लीजिए, E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹, H मीन्स बोर मॉडल उसका कांस्टेंट है, राइट, लाइक। सो वो जो कांस्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट, वो 6.63 इंटू 10⁻34 है। 4 पाई कांस्टेंट है। ME की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31। ME मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9.27 इंटू 10⁻24। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक मोमेंट of electron when circulating around the nucleus. The value is called the Bohr magneton. इसकी वैल्यू को क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटॉन। अब इसके ऊपर से एक इंस्ट्रूमेंट बना गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसे MCG कहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ये पिक्चर यहाँ पर दिखा है। इसमें भी दो सर्कुलर टाइप के शेप के मैग्नेट होते हैं, हॉर्स शू टाइप के मैग्नेट होते हैं, राइट, लाइक। उसके अंदर एक सर्कुलर कॉइल है, उसके साथ एक पॉइंटर अटैच किया हुआ है। वो पॉइंटर जहाँ घूमता है उसको एक स्केल के ऊपर वो रोटेट होता है, राइट, या स्लाइड होता है। सर्कुलर होने की वजह, सर्कुलर शेप होने की वजह से यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसमें एक सॉफ्ट आयन कोर के अंदर एक कॉइल वाउंड की होती है, राइट, लाइक दिस। और उस कॉइल के साथ ही ये पॉइंटर अटैच्ड है। ये परमानेंट मैग्नेट है दोनों, राइट, लाइक दिस। अभी इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल विथ मैनी टर्न्स, उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, फ्री टू रोटेट अबाउट द फिक्स एक्सिस in a uniform radial magnetic field. There is a cylindrical soft iron core which not only makes the field radial but also increases the strength of the magnetic field. When a current flows through the coil, a torque acts on it. अभी इसके ऊपर भी टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क कितना होता है, बिना जितना, मतलब NIAB या BINA अगर हम पढ़ेंगे तो बीना हो जाएगा, राइट, याद रखने के लिए इजी है। So when a current flows through the coil, a torque acts on it. This torque is given by torque tau is equal to N into I into A into B. उसमें से आप देख लीजिए,
I इज द वेरिएबल, बाकी n a और b तो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार आपने कॉइल बना दी है तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होने वाले नहीं है। अगर आपने कॉइल पहले से बना दी है तो उसका एरिया भी छोटा बड़ा होने वाला नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, राइट, लाइक दिस। और अगर आपने मतलब अंदर मैग्नेट भी रख दिए हैं तो b की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। सो टॉर्क की वैल्यू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना आप ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, उतना रोटेशन ज्यादा आएगा। सो टॉर्क टॉय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, राइट, लाइक दिस। अब उस टॉर्क की वजह से ये पॉइंटर, ये कॉइल घूमेगा, कॉइल घूमेगा तो ये पॉइंटर भी इस स्केल के ऊपर स्लाइड करेगा, राइट, लाइक द पॉइंटर विल आल्सो स्लाइड ऑन दिस। अब एक बार करंट मेजर कर लिया है या देख लिया है, व्यू कर लिया, तो फिर से उसको जीरो पे लाने के लिए अंदर एक स्प्रिंग होता है। वो स्प्रिंग इस पॉइंटर को फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएगा, राइट। द मैग्नेटिक टॉर्क बीना टेंड्स टू रोटेट द कॉइल। स्प्रिंग एसपी प्रोवाइड्स ए काउंटर टॉर्क, क्योंकि काउंटर टॉर्क चाहिए ना फिर से उसको अपनी पोजीशन में लाने के लिए। तो ये जो आप हेलिकल स्प्रिंग देख रहे हैं, ये उसको अपनी जगह पर फिर से लेके आएगा। वो हेलिकल स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क लगाएगा। उसके टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? k इंटू फाइव। अब दोनों टॉर्क को इक्वेट कर दीजिए तो k फाइव इज इक्वल टू एन आई ए बी। जब पॉइंटर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टेडी हो जाएगा तो इंटरनल टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू आउटर एक्सटर्नल टॉर्क, तो दोनों इक्वेट कर देंगे। तो k इज द टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो फाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। द रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, the deflection phi is indicated on the scale by the pointer attached to the spring. So phi is equal to NAB upon K into I. तो ये phi की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है, राइट, लाइन। अब इसी गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर, ये तीन टाइप के मीटर हैं। वैसे ये तीनों मीटर है तो एक ही चीज, वो गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं, लेकिन तीनों में बेसिक डिफरेंस शायद बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट का प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकता है। गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं करता, वो सिर्फ डिटेक्ट करता है कि करंट है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, करंट का डायरेक्शन भी डिटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में स्केल में जीरो, मतलब जो ओरिजिन है जीरो है, वो सेंटर पे होता है, और दोनों तरफ 10 20 30 और दूसरी तरफ भी 10 20 30, इस तरह से कैलिब्रेशन होता है। अगर करंट का डायरेक्शन ए टू बी है तो वो इट विल गो टू द राइट साइड, और अगर करंट का डायरेक्शन बी टू ए है तो इट विल गो टू द लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब है हमें करंट का डायरेक्शन भी पता चलेगा और करंट है कि नहीं है ये भी पता चलेगा, मतलब डिफ्लेक्शन पता चलेगा, राइट, लाइन। गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन। अब उस गैल्वेनोमीटर में थोड़ा बहुत चेंज करके हमें अगर करंट की वैल्यू मेजर करनी है तो हमें उस गैल्वेनोमीटर में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको एमीटर बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको एमीटर बनाते हैं जिससे हम करंट की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, और ऐसा ही कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको वोल्ट मीटर बनाते हैं जिससे हम उससे वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एमीटर कैसे बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर एज एमीटर। द गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड as an ammeter to measure the value of current in a given circuit. This is for two reason. अब इसमें डायरेक्टली हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके दो रीजन है। एक तो गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, उसे FSD कहते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फॉर ए करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इवन माइक्रो एम्पियर। मतलब उसमें से बहुत ही छोटा करंट पास कर दो तो भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाता है, और अगर बहुत फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया तो या तो वो निडल जो है उसकी पॉइंटर है वो टूट जाएगा, या फिर अंदर की कॉइल भी टूट जाएगी या जल सकती है। For measuring currents in the galvanometer has to be connected in series, and that it has a large resistance. This will change the value of the current in the circuit. ये सेंटेंस क्या है समझ लीजिए। गैल्वेनोमीटर से अगर हमें एमीटर बनाना है जो करंट मेजर करेगा, तो एमीटर करंट मेजर करने के लिए किसी भी कंपोनेंट के सीरीज में लगता है। अब जैसे ही सीरीज में लगा देंगे तो उसका खुद का रेजिस्टेंस, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो अंदर सर्किट के अंदर है उसके साथ वो ऐड हो जाएगा। अगर ऐड हो जाएगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पर दिखा है ये एक्चुअली रेजिस्टेंस है, उसमें से करंट मेजर करना है, उसके साथ मैंने गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगा दिया
तो अभी गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में आ गया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गया, अल्टीमेटली करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये कभी भी करेक्ट करंट मेजर नहीं करेगा। दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज वन attaches a small resistance RS called the shunt resistance in parallel with the galvanometer coil, so that most of the current passes through the shunt। तो वो शंट में से पास हो जाएगा। तो क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देंगे, राइट, स्मॉल रेजिस्टेंस। ताकि होगा क्या, स्मॉल रेजिस्टेंस से दो फायदे होंगे। एक तो बहुत सारा करंट स्मॉल रेजिस्टेंस से चला जाएगा, गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होगा, अल्टीमेटली गैल्वेनोमीटर जलने से बच जाएगा, राइट। और दूसरा, अगर स्मॉल रेजिस्टेंस को किसी बिग रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस वैसी की वैसी रहती है, वो चेंज नहीं होती, राइट, लाइक दिस। सो दैट इज व्हाई वी कैन डू दिस ट्रिक। So it parallel with the galvanometer so that the most of the current passes through the shunt. We define the current sensitivity of the galvanometer as deflection per unit. अभी phi upon I को हम galvanometer की sensitivity कहते हैं। जो पहले आगे एक इक्वेशन आया था, ये इसके अंदर से I को इस तरफ ले लीजिए तो phi upon I मीन्स क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट एम्पियर ऑफ करंट। आगे इस तरफ देखेंगे तो सब कुछ कांस्टेंट है, देख लीजिए, n कांस्टेंट, a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, k कांस्टेंट। k मतलब स्प्रिंग का है, तो एक बार स्प्रिंग बना दी तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, राइट, लाइक दिस। सो phi upon I इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब हमें रेजिस्टेंस, मतलब जो ये शंट रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला फॉर शंट, ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा उसका डेरिवेशन दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो अपने नॉर्मल बुक में नहीं है, तो ये पहले वाली बुक से लिया गया है। फॉर्मूला फॉर शंट, सपोज ए गैल्वेनोमीटर हैविंग द रेजिस्टेंस G एंड करंट सेंसिटिविटी IG। तो सपोज ये गैल्वेनोमीटर है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस G है, उसकी करंट कैपेसिटी IG है, उसके अक्रॉस हमने S शंट लगा दिया है, शंट रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब यहाँ से जो करंट आ रहा था अब तक, जो रेजिस्टेंस में से पास होने वाला था, वो अभी क्या हो जाएगा, शंट लगाने से उसके दो पार्ट हो जाएंगे, IG यहाँ से जाएगा और IS यहाँ से जाएगा, राइट, लाइक। तो ये एक पूरा लूप बन गया, मतलब एक इक्वेशन हमें क्या मिल गया, I इज इक्वल टू IG प्लस IS। For this value of required shunt is suppose S. Here is the shunt should be so chosen that out of the current I only IG passes, current passes through the galvanometer, and the remaining IS is equal to I minus IG current passing through the shunt. अब इसके ऊपर जैसे बहुत इजी है, ये KCL लगाया है फर्स्ट लॉ इस जंक्शन के पास, और ये KVL है, ये इस लूप के लिए लगाया है। तो I इज इक्वल टू IG प्लस IS। अब लूप के लिए क्या करेंगे, माइनस IG इंटू जी प्लस IS इंटू एस इज इक्वल टू 0। सो S की वैल्यू मिल जाएगी GIG अपॉन IS, राइट, लाइक दिस। IS की वैल्यू I माइनस IG रख देते हैं, राइट, लाइक दिस। IS की वैल्यू I माइनस IG रख देते हैं, राइट, लाइक दिस। तो क्या आएगा, S इज इक्वल टू GIG अपॉन I माइनस IG। तो इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर बन गया इस तरह से। फिर गैल्वेनोमीटर इज वोल्ट मीटर। अब उसमें से वोल्ट मीटर बनाएंगे। द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, also called the voltage between the two ends of components in a circuit, it is called the voltmeter. For this purpose the voltmeter is joined in parallel to the component। ये फिर से हम बता रहे हैं, ए मीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, राइट, लाइक वोल्ट मीटर पैरेलल टू द कंपाउंड। सपोज द वोल्टेज अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस आर शोन इन फिगर। तो ये हमने यहाँ पर सर्किट में दिखाया है, इसका भी डेरिवेशन हम सर्किट से देख सकते हैं। तो सपोज ये गैल्वेनोमीटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, उस गैल्वेनोमीटर के साथ में हमने एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया है, इट इज टू बी मेजर्ड। फॉर दिस ए गैल्वेनोमीटर with resistance G and the current capacity IG is used. We find the following difficulties. On joining a galvanometer as shown in the figure, total resistance of the circuit becomes R dash is equal to R1 plus RG upon R plus G। तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आता है, जब उसको हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो उसका भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, अल्टीमेटली वो रॉन्ग वैल्यू मेजर करता है। तो अभी इसको अवॉइड करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा देंगे, बिग रेजिस्टेंस, राइट, उसको सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं, उससे वो गैल्वेनोमीटर बन जाएगा। तो ये कैसे बनाते हैं देख लीजिए।
तो ये इसकी सर्किट है। अब इसकी फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। तो सपोज ए रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, its current capacity is Ig, and hence its voltage capacity will be Ig into G. This galvanometer is to be converted into the voltmeter, which can measure maximum of voltage potential difference of V volt. For this required series resistance is Rs. तो अभी इसके लिए हम किरचॉफ्स सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो माइनस आई जी इंटू जी प्लस माइनस आई जी इंटू जी माइनस आई जी इंटू आर एस इज इक्वल टू वी। तो दोनों तरफ वो वी भी माइनस आएगा, अल्टीमेटली सब जगह पॉजिटिव साइन हो जाएगी। तो आर एस की वैल्यू वी अपॉन आई जी माइनस जी, ये फॉर्मूला हमें मिल सकती है। तो इतने वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये डेरिवेशन उसका है, राइट लाइक दिस। अब इसमें भी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो फाई अपॉन आई इंटू आर, मतलब V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो एन ए बी अपॉन के इंटू आर वन अपॉन आर, ये आ जाएगा। तो फाई अपॉन V इज इक्वल टू नेब अपॉन के आर। तो ये इसकी फॉर्मूला है। हियर फाई अपॉन V इज कॉल्ड द वोल्टेज सेंसिटिविटी, SV ऑफ वोल्टमीटर, राइट लाइक दिस। तो ये वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी इसके अंदर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फोर्थ लेसन कंप्लीट होता है। सेकेंड लेक्चर में हमने ये पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया। उसके डेरिवेशन भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। आप इसी तरह से प्रिपेयर करके बेस्ट आंसर लिख सकते हैं, और उसके न्यूमेरिकल्स भी हम इसके अगले लेक्चर में करेंगे, राइट। थैंक यू।